میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت, میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو, فرمان لگے ڈالے لئی حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کہہ کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت دو وہ وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی گی تو باہر جا کے پڑھنا. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے وہ تینوں ناپسند ہے. عارفوں کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ ناپسند ہے, یہ باہر جا کے پڑھی, وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی نہیں. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو جی یہ تو سمجھ میں باہر ہے, یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ پڑھیے کتوں آیا ہے والا کام, ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے, یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام, پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے, اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا, بی بی صاحب آ گئی, آ کے کہتی حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں گے. دانا آدمی تھے, اور ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی ساڑھی ساتھ بچانے نہ کوئی ساتھ مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے تو کو تانوں 4 لبنڈے نے پسے لبنڈے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبی ہے, دل کرتا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں, اے نا لیران دی گل کفنی پاکے رلسا سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی, ابھی بھی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے, ہم نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے, اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر, پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. آپ فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت, دمیاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت, اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت.
कुछ तो उस आशिक के दिल पे चोट लगी होगी ना जब इतना दर्द निकला अंदर। जेड़ी मैनी रंग ना देवे किए उसदा लाना, जेड़ी मैनी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना है। भाई मैं बाप दुख से कहने लगा, ये बस पढ़ने और सुनने सुनाने तक ही रह गए, अप्लाई नहीं हुए। अप्लाई मैं वैसे जितने स्पेशली नौजवान बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो, हजरत शादी कार्ड आता है आपकी भी? शादी कार्ड, तो शादी जब कार्ड आता है तो शादी कार्ड में लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? पा के दे जाते हो, वो पा के जाया करो बड़ा भैड़ा जो ट्राउजर मस्जिद नहीं रखे है, तो मस्जिद नहीं रखे है, वो भैड़ी जी शर्ट जी है वो मस्जिद नहीं रखी है, क्यों काका भाई जी वो मस्जिद नहीं रखी है, अल्लाह के घर रही यार मुझसे दिन में पा के जाते हो। अच्छा, तो लिखा तो नहीं होता कि नए जूते पहन के आना, अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता, कुछ भी नहीं ना लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड में सिर्फ लिखा होता है दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस ये लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर डाम के जाना, अरे ना है वहां तो लिखा हुआ है। शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर तेरे कितने गया यार वडाना वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूं जितने अहबाब बैठे, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे कि उसदा सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार बटाने हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो मैंने आपसे पहले पूछा शादी कार्ड में कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद तक कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप ए टू जी सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आदाब है, मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं बदल बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं एक दुख पुत्र आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूं हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सिखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी, आजकल दूल्हे हमारे पेंट कोट, अल्लाह करे जी वो पेंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे आप तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो क्या पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला यहाँ पाक आए हैं ना सिर पे, उन्होंने क्या, मैंने कहा क्वाइने पाकिस्तान में नई शिफ्ट तो नहीं आई जो कुल्ला या पाकिस्तान पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी? नहीं हजरत मैं बस ये चिट्ठी, कल बरोदे क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है 10 बंदे वोटी नहीं दे कुल्ला बांध लिया सी कभी साढ़े यार भी बने दिया है वोटी नहीं दे कुल्ला बांध साढ़े यार ली। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बांधी हो। नहीं जी नंगे थे नहीं, सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है कि शबरात में बांधनी हो,
नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बात नहीं हो, और नहीं नंगे सेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10वां रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। और ताकराता देखो, नंगे सेरी। और सीवी देख लो, नंगे तेरी। और ईदा देख लो, नंगे तेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जी? अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोटी नहीं मारन नहीं साढ़े सोने नहीं क्यों भाई नौजवान क्यों तो आपस में बैठे हैं किबला शाफिल कुरान का उससे पाक है। मैंने कभी हज़रत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। वो दसों पे सही है क्यों है सड़ बैठी और आने चलो पग नहीं टोपी सही है क्यों यार को वजह तो बताओ ये अल्लाह भाई। नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए। इसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल वो भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार। इसलिए जी इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र तुम सब तू सोने को पता केड़े रंग च लगते हो, ਉਹਦੇ महबूब के रंग च एक ही रंग। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है सिर्फ सोने का रंग। और कोई जैसे मैंने कहा ना रजीब फाइन लहू मईशतन धनका, ये भी मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। और फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता माफल लगा लेता, यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा अदबी लिखा है। उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था, उसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना बादशाह ने पहचान लेना, उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू लिखा जी वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। और जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ
ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़ने, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब लोग कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रले पर ते बन बन बहदे और वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज किया अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है दुआ ने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उस दुआ कर जाकर शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए। उसने कहा उठा मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाकर बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब जाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत थे क्या है, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत है नजरें झुकाए बैठा रहा डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दी। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना तो लिखा है कि वो उठा और जाके उसने बादशाह के पांव पकड़ ली और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार आप अल्लाह वाले क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे अल्लाह वाले वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की तो अपने बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा और रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ।